Hi Adit, am I audible to you? Yes, sir. Okay, so today we are going to start new chapter atomic structure and I think this chapter should be more interesting than basic concept of chemistry क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नया concepts है. This is more like new theories, new types of numericals you will get to know. So it should be interesting for a curious student. Okay, so Yes, this sir. chapter is atomic structure. So there are lots of topics we are going to learn here, like how the electron, proton, neutrons, these subatomic particles are discovered, followed by different models of atom, where the scientist will uh, give the theories by which you know that how the particles are arranged inside the atom. Atomic models is all about the arrangement of these subatomic particles inside the atom and how that explain the stability of atom, right? And during the during one model to another model, जब modification होगा, when there will be new models coming in between you have to learn new theories. Okay, so that is as in a summary I can tell you, right? चलो, so let us start with atomic structure. अब तुम बताओ, let us एक काम करते हैं. So let's say this is a substance and we started dividing the substance into smaller pieces. ठीक है. Now if I continue that, तो एक सर्टेन पॉइंट पे जाके तुम्हें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मिलेगा. Yes, sir. इफ यू कीप डिवाइडिंग द सब्सटेंस इनटू स्मॉलर पीसेस, तो एक सर्टेन पॉइंट पे तुम्हें पहले माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मिलेगा. सो कैन यू टेल मी व्हिच माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यू विल गेट फर्स्ट, मॉलिक्यूल और एटम? Molecule. मॉलिक्यूल. यू विल गेट मॉलिक्यूल फर्स्ट. इफ यू कीप डिवाइडिंग, क्या मिलेगा? एटम मिलेगा, राइट? नाउ Yes, sir. will you tell me that which concept was proposed first? The atom का concept पहले मिला था और molecule का concept पहले मिला था. So, first we got to know about, we thought everything was related to atoms. Right. So atom was proposed by John Dalton, right? Yes, sir. And these postulates are known as Dalton's atomic theory. Okay. So let us know a little bit of Dalton's atomic theory. I think this is known to everyone. Class 9, 10 पे ये सारे चीज पढ़ाया जाता है, right? So can you tell me the postulates of Dalton's atomic theory and also the limitation of every postulate? Because we already know that Dalton's atomic theory does not explain most of the things, right? That is why we Yes, have to sir. learn so many other things. Later on, Hmm. scientists started looking for subatomic particles and all those. So you have to tell me the postulates of Dalton's atomic theory and the limitation of every postulate. Can you do that? Yes, sir. So, Dalton's postulates, he had four postulates. The first one was matter consists of indivisible atoms, but Right. this was proven wrong by the discovery of subatomic particles such as protons, neutrons, and electrons. Right. So the first postulate is atom is the smallest. Every substance is made of very tiny particles, right? Yes, sir. And atom is the smallest indivisible particle of substance. That means Dalton said the atom is the smallest particle which cannot be divided further, right? Yes, sir. And of course, that is wrong with the discovery of electron, proton, neutron. This is violated. Yes, sir. So, first postulate and the limitation done. What is the second postulate? All atoms of a given element have identical properties, including identical mass, and atoms Uh, of different elements will have different atomic mass. Correct. So, not only different atomic mass, they will be different with respect to each other. So, let's say A is an element and this square boxes are the atoms of A, right? So, this A atom should be identical with respect to each other. Similarly, let's say this is B element and this small spheres are B atoms. So these B atoms are identical with each other, but one A atom will be different from one B atom. They will be different. So atoms of different elements are different with respect to each other, but atoms of an element are identical with respect to each other, right? But is it correct? No, sir, because isotopes exist. राइट, विद द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप. तो आइसोटोप क्या है? सो आइसोटोप मतलब एक ही एलिमेंट का डिफरेंट एटम्स हो सकता है. जैसे हाइड्रोजन के लिए इट कैन बी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम. एलिमेंट तो सेम है Hmm. बट डिफरेंट एटम्स हो सकता है, राइट?
That is a drawback. Yes, sir. Yes. So this is the second postulate, and the drawback is also done. What is the third postulate? Hmm. The third postulate, which Dalton stated in his atomic theory, was compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed simple whole number ratio. Correct. So जब when the elements combine with each other, they do so in simple whole number ratio of their atoms, right? Yes, For sir. example, if you take water, in water, hydrogen, oxygen, the ratio of their atom is 2:1, which is a simple whole number ratio. In ammonia, nitrogen is to hydrogen is 1:3. So they are following Dalton's postulate. So these compounds where Dalton's postulate is followed can be called Daltonides, where the simple whole number ratio is followed, right? Yes, sir. But then there are discovery of compounds like Fe0.930, Fe0.950, and so many others, which does not follow this simple ratio rule, right? So Yes, sir. with this discovery of this substance, the postulate is violated again, Yes. and this kind of compounds are known as Barthelloids, since Barthello was the scientist who first discovered this kind of substance. Is it clear? Yes, sir. Okay. What is the fourth one? What is the fourth postulate? Chemical chemical reactions involve reorganization of atoms, and they are neither created nor destroyed in a chemical reaction. Right. So atoms can neither be created nor be destroyed. Right. Simply, he said that atoms can neither be created nor be destroyed. But again, this is violated with the discovery of radioactivity. अब Yes, sir. radioactivity पता है क्या है? Radioactive. Who is radioactive element? तुम पहले ये बताओ, It रेडियो एक्टिविटी जो है ये न्यूक्लियस का इवेंट है या न्यूक्लियस के बाहर होता है? depends on the stability of nucleus. राइट, मतलब ये न्यूक्लियर फेनोमेनन है, न्यूक्लियस का इवेंट है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है? अब पॉइंट क्या है, देखो समझो, रेडियो एक्टिविटी कैसे होता है? सो लेट्स से ये जो एलिमेंट है एक्स, जिसका एटॉमिक नंबर इज जेड एंड मास नंबर इज ए, लेट्स से दिस इज एन अनस्टेबल न्यूक्लियस, राइट? तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियस, तो एक न्यूक्लियस कब अनस्टेबल होता है? एक न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, देखो हर एक न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन इट्स न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन रेशियो, ठीक है? Yes, sir. हर एक न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी इसका न्यूट्रॉन इज टू प्रोटॉन रेशियो पे डिपेंड होता है, राइट? हर एक Hmm. न्यूक्लियस के लिए ये रेशियो का एक स्टेबल रेंज होता है. इफ द रेशियो ऑफ ए न्यूक्लियस लाइज इन द स्टेबल रेंज, तो फिर वो न्यूक्लियस स्टेबल होगा. बट इफ द रेशियो वायलेट्स दैट रेंज, इफ द रेशियो गोज बियॉन्ड दैट रेंज, ऊपर या नीचे हो सकता है, तो फिर द न्यूक्लियस विल बिकम अनस्टेबल, ठीक है? Yes, sir. तो लेट्स से दिस एलिमेंट एक्स जेड ए ये अनस्टेबल है, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज जेड एंड न्यूट्रॉन्स इज ए माइनस जेड, ठीक है? एंड लेट्स एज्यूम दैट ये Yes, जो sir. n बाई पी रेशियो ये स्टेबल रेंज पे नहीं है ये न्यूक्लियस के लिए, दिस न्यूक्लियस इज अनस्टेबल. तो फिर क्या होगा? Hmm. इफ द न्यूक्लियस इज Then अनस्टेबल, तो फिर क्या होगा? दिस न्यूक्लियस विल ट्राई टू रिस्टोर द स्टेबिलिटी बैक बाय रिस्टोरिंग द रेशियो बैक इनटू द स्टेबल रेंज, yes, है ना? ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो को स्टेबल रेंज पे रिस्टोर करना चाहेगा, सो दैट इट कैन गेट द स्टेबिलिटी, इट कैन अचीव द स्टेबिलिटी. And while yes, sir. restoring this ratio back into the stable range, nucleus undergoes some disintegration. मतलब न्यूक्लियस के अंदर डिसइंटीग्रेशन होता है और न्यूक्लियस के अंदर कोई चेंजेस आता है, राइट? व्हाट इज द चेंजेस? न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस से कोई हाई एनर्जी पार्टिकल बाहर निकल के आ सकता है, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय Hmm. गेटिंग स्टेबिलिटी? अचीविंग स्टेबिलिटी मीन्स लोअरिंग द एनर्जी. Stability and energy, they are inversely related, right? Stability and Yes, energy, they are inversely related. Greater the stability, lower the energy. तो क्या होगा? तो what this nucleus will try to achieve the stability by lowering its energy, and during that
it emits some high energy particles like alpha particle, beta particle by the disintegration of nucleus. तो न्यूक्लियस के अंदर कंपोजिशन चेंज होता है, न्यूक्लियस टूट के क्या होता है, कोई हाई एनर्जी पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल व्हिच इज बेसिकली ए डाई पॉजिटिव हीलियम आयन, बीटा पार्टिकल इज नथिंग बट ए इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस तोड़ के निकल के आता है. These are high energy particles, and by losing these high energy particles, it restores its n by p ratio and it gains the stability back. Is it clear? Yes. So that is how nuclear disintegration takes place or radioactive decay takes place. Nuclear fission, nuclear fusion जो भी रेडियो एक्टिविटी का पार्ट है तो वो इस तरीके से होता है. ठीक है, जिसमें ये जो Yes. डिसइंटीग्रेशन से पहले जो एटम है दिस इज कॉल्ड पेरेंट न्यूक्लियस, एंड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन जो तुम्हें एटम मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियस, राइट. And this will continue, this disintegration will continue until you get stable nucleus, right, where the ratio is back into the stable range. Is it clear? Yes, sir. चलो, तो समझ में आ गया. तो रेडियो एक्टिविटी में क्या है, यू आर गेटिंग ए न्यू एलिमेंट. अगर न्यूक्लियस चेंज होने का मतलब है एलिमेंट चेंज हो जाएगा. यस और नॉट? Yes, sir. तो ये फोर्थ पोस्टुलेट भी वायलेटेड हो गया एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड द रेडियो एक्टिविटी एज वेल. ठीक है, तो डाल्टन ने ये एटॉम का postulates और एटॉम का कंसेप्ट दिया था टू एक्सप्लेन द स्टेबल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, राइट. बट ग्रेजुअली इट वाज फाउंड दैट दिस कुड नॉट एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट. सो व्हाट हैपेंड देन, द साइंटिस्ट started looking inside the atom, right. मतलब if atom can be further divided, atom के अंदर कुछ है कि नहीं, and that is how gradually electron, proton, neutron were discovered. Is it clear? Yes, sir. चलो, तो काम करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस पार्टिकल्स आर डिस्कवर्ड एंड विल स्टार्ट विद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट. डू यू नो हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? Yes, J.J. Thomson. J.J. Thomson, right. So I'll tell you. So there is a scientist named Julius Placer. ठीक है, तो he was experimenting with the conductivity of gas. अब देखो, गैस तो नॉर्मल कंडीशन पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है ना. अगर गैस नॉर्मल कंडीशन पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा होता तो एवरीथिंग अराउंड अस वुड बी इलेक्ट्रिक इन नेचर, राइट. एवरीथिंग वुड स्पार्क. यस और Hmm. नो? तो Yes. व्हाट जूलियस प्लकर फाउंड दैट गैस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी under two conditions. One is the pressure must be very low. You have to keep the pressure of gas very low, and you have to apply very high voltage. These are the two conditions under which gas can conduct electricity. And Thomson was experimenting with the same setup. Okay. So let us understand cathode ray tube experiment from which electron was discovered. ठीक है, so what is the setup here? You can see we have a glass tube here. We have a glass tube inside which there are two metal plates connected to the opposite ends of battery. तो यहाँ पे दिख रहा है प्लस माइनस, देयर टू ऑपोजिट एंड्स ऑफ बैटरी. घर पे तुम बैटरी देखे होगे, रिमोट का बैटरी एंड देयर आर बैटरी ऑफ क्लॉक. सो यू हैव सीन द बैटरीज. बैटरी के दोनों एंड पे प्लस माइनस लिखा रहता है, राइट. एंड बैटरी के बॉडी में कुछ वोल्टेज लिखा रहता है लाइक 1.5 वोल्ट, 3.5 वोल्ट, लाइक दिस, राइट. तो ये बैटरी का दोनों एंड है, पॉजिटिव एंड एंड नेगेटिव एंड. ठीक है, अब बैटरी का दोनों एंड के साथ ये दो मेटल प्लेट्स आर कनेक्टेड. कैन यू फॉलो मी और नॉट? Yes. So you can see the black metal plates which are connected to the opposite ends of battery. बैटरी का दोनों एंड है प्लस माइनस, तो जो मेटल प्लेट प्लस एंड के साथ कनेक्टेड होगा दैट इज पॉजिटिव प्लेट, जो नेगेटिव एंड के साथ कनेक्टेड होगा दैट इज नेगेटिव प्लेट. ठीक है, और क्या दिख रहा है तुम्हें कि ये दोनों के अंदर क्या है, ये दोनों प्लेट के अंदर हाइड्रोजन गैस हैज बीन टेकन एट वेरी लो प्रेशर. अब प्रेशर कंट्रोल कैसे होता है, यहाँ पे कैन यू सी दैट देयर इज अ वैक्यूम पंप. तो वैक्यूम पंप से क्या होता है, यू कैन एक्सट्रैक्ट द एयर or the gas
inside the glass tube. Glass tube से जो गैस है उसको तुम बाहर निकाल सकते हो. That means you can maintain the pressure using the vacuum pump. So with the help of vacuum pump, the pressure of gas is maintained very low, around 10 to the power minus 4 atmosphere, right? है ना? Yes, sir. And अच्छा, ये जो कैथोड और या जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्लेट है, तो तुम बताओ नेगेटिवली चार्ज जो प्लेट है ये किसको अट्रैक्ट करेगा? इट इज सपोज टू अट्रैक्ट ए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, Positive. राइट? तो नेगेटिव प्लेट विल कलेक्ट पॉजिटिव आयंस मतलब कैटायंस, राइट? तो कैटायंस Yes. को जो कलेक्ट करता है दैट प्लेट विल बी कॉल्ड कैथोड. सो कैथोड मस्ट बी ए नेगेटिव चार्ज प्लेट, राइट? एंड द सेम लॉजिक जो एनायन को कलेक्ट करेगा मतलब नेगेटिव चार्ज को कलेक्ट करेगा दैट विल बी कॉल्ड एनोड. एंड हु विल कलेक्ट द नेगेटिव चार्ज? द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट. सो दिस इज एनोड. ओके, और क्या दिख Yes, रहा sir. है तुम्हें? ये एनोड के पीछे वी हैव ए स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड कोटिंग. यहाँ पे एक स्क्रीन है एनोड के पीछे कोटेड विद जिंक सल्फाइड. अब जिंक सल्फाइड का रोल क्या होता है? So zinc sulfide is a fluorescent compound. This is a fluorescent compound. इसका काम क्या होता है? When this compound is energized or excited, तब ये greenish glow देता है, right? कब देता है? When it is Okay. excited or energized, right? So this is the Yes, whole sir. setup. Again I am telling you, you have a glass tube inside which you have two metal plates connected to the opposite ends of battery. ठीक है? There is a vacuum pump using which you can extract the gas out of the glass tube. मतलब you can reduce the pressure of the gas. So gas pressure is set up at very low pressure like around 10 to the power minus 4 atmosphere. एनोड के पीछे क्या है? जिंक सल्फाइड कोटिंग है. ठीक है, जिंक सल्फाइड क्या होता है? दिस इज ए फ्लोरोसेंट कंपाउंड which gives greenish color on excitation or being energized. ठीक है, and with this setup I have put the switch on for the battery and I have applied very high voltage of 10 to the power 4 volt, right? समझ में आया सारे सेटअप एंड Yes, sir. एवरीथिंग? तो अगर Yes, sir. बैटरी का मैं स्विच ऑन कर देता हूँ, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन यू विल सी? यू विल सी that this zinc sulfide coating behind the anode is glowing with green color. That is the observation you will have. तो इस ऑब्जर्वेशन से व्हाट कैन यू कंक्लूड? क्या कंक्लूड कर सकते हो तुम? तो ये कंक्लूड होता है कि यहाँ पे कोई ना कोई एनर्जी तो जनरेट हुआ है. देयर इज सम इनविजिबल एनर्जी. मुझे पूरा ग्लास ट्यूब में कुछ नहीं दिख रहा है बट जिंक सल्फाइड कोटिंग से ग्रीनिश ग्लो निकलते हुए दिख रहा है. तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये ट्यूब के अंदर कोई इनविजिबल एनर्जी जनरेट हुआ है विच इज मूविंग टुवर्ड्स द एनोड. जो यहाँ पे एनोड पे ना एक स्लीट है, यहाँ पे एनोड पे एक स्लीट है, ठीक है? सो दैट इफ एनीथिंग इज जनरेटेड दैट कैन पास थ्रू द स्लीट. ठीक है, तो व्हाट वी If कैन anything कंक्लूड? is. देयर इज एन इनविजिबल एनर्जी जनरेटेड इनसाइड द ट्यूब व्हिच इज मूविंग टुवर्ड्स द एनोड. मतलब कैथोड से एनोड की तरफ उसका डायरेक्शन है, right? And that is why Yes, sir. zinc sulfide is energized and it is giving Hmm. greenish glow. Yes or no? Hmm. That Yes. is a conclusion. Invisible energy inside the tube जिसका direction cathode से anode की तरफ है, ठीक है? And as per the direction it is named as cathode ray. मतलब जहां से जिस तरफ से आ रहा है उसके हिसाब से you can call it cathode ray, right? Yes. चलो, तो अभी तो सब यही पता चला है कि इनविजिबल एनर्जी एंड डायरेक्शन पता चला है बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस रे मोर. तो कुछ और एक्सपेरिमेंट करेंगे. व्हाट आर द अदर एक्सपेरिमेंट्स? तो लेट अस डू वन थिंग. ये व्हाट वी हैव डन, ये कैथोड एंड एनोड के बीच वी हैव प्लेस्ड ए ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दूं तो फिर क्या दिख रहा है? दैट वी आर गेटिंग ए शैडो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. यहाँ पे एक शैडो मिल रहा है, ठीक है? अब ये शैडो मिलने से व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट? तुम क्या कंक्लूड कर सकते हो
कि दिस एनर्जी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन लाइक लाइट, राइट? क्योंकि इफ यू ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट तो फिर क्या होगा, पीछे शैडो जनरेट होगा, बिकॉज लाइट कैनॉट मूव थ्रू द ऑब्जेक्ट, राइट? Yeah. Hmm. तो यहाँ पे भी शैडो जनरेट होने का मतलब क्या है, मतलब दिस एनर्जी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन लाइक लाइट, ठीक है? कैथोड रे मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। तो दूसरा एक एक्सपेरिमेंट All the करते time. हैं। सॉरी, Does it move in straight lines all the time? राइट? It has a nature Okay. like light. It moves in the Hmm. straight line. That this Hmm. experiment says that only. दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, Hmm. ये दोनों मेटल प्लेट के बीच एक छोटा सा पेडल व्हील रख दो, एक पंखा छोटा सा, एंड व्हाट विल यू ऑब्जर्व कि अगर तुम रखते हो तो ये दिस व्हील रोटेट्स, ठीक है? दिस Hmm. रोटेट्स, तो यहाँ से क्या पता चलता है, देखो, दिस व्हील विल रोटेट ओनली कब होता है, if the momentum is transferred। देखो, when you collide, let's say you are running and collide with someone, तो तुम्हारा जो momentum और काइनेटिक एनर्जी है that will be transferred to that person, तो उसको भी एक मोशन मिल सकता है, वो गिर जाएगा, Hmm. ठीक है? Yes, sir. yes or no, because your momentum is Yes. getting transferred to that person or that entity। तो ये जो Yes, sir. व्हील रोटेट हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मोमेंटम इसमें ट्रांसफर हो रहा है, राइट? एंड मोमेंटम इज द Hmm. नेचर ऑफ पार्टिकल, किसके पास होता है, पार्टिकल के पास होता है, राइट? मूविंग पार्टिकल, उसके पास मोमेंटम होता है। तो कैन आई से दिस कैथोड रे नथिंग बट ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स? तो ये पार्टिकल्स जब इसके Yes, साथ sir. टकरा रहा है और कोलाइड कर रहा है, देन द मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड एंड द व्हील इज रोटेटिंग। तो व्हाट यू कैन सी, यू कैन से कैथोड रे स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। तो इसके पास मोमेंटम है विच इज ट्रांसफर्ड टू द व्हील, दैट इज व्हाई द व्हील रोटेट्स, ठीक है? Okay. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, और भी मुझे पता करना है। सो नेक्स्ट व्हाट वी आर डूइंग, इन द पाथ ऑफ कैथोड रे तुम्हें बाहर से दो एक्सटर्नल प्लेट्स अप्लाई कर रहा हूँ, पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट में, मतलब वी आर अप्लाइंग सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? एंड व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, द ऑब्जर्वेशन इज द कैथोड रे डिफ्लेक्ट्स, इट डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, ठीक है? द कैथोड रे डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। तो तुम्हें यहाँ से क्या पता चलता है, तो इसका मतलब कैथोड रे में जो पार्टिकल्स है दे आर नेगेटिवली चार्ज, Yes. राइट? एंड Hmm. ऑल्सो इफ यू आर अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो भी कैथोड रे का डिफ्लेक्शन होता है टुवर्ड्स द डिजायर्ड डायरेक्शन, Okay. ठीक है? इसका मतलब कैथोड रे डिफ्लेक्ट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड और इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, एंड ये डिफ्लेक्शन से पता चलता है कि कैथोड रे इज स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। एंड इससे और भी पता चल सकता है कि ये लाइट की तरह स्ट्रेट लाइन पे तो चलता है बट लाइट जैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, दिस इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्यों नहीं है, क्योंकि लाइट Hmm. डज नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर नहीं है दैट दिस डिफ्लेक्शन पार्ट। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. तो ये भी हो गया। और भी कर सकते हो तुम, तो कैथोड रे के रास्ते में यू कैन कीप सम एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम फॉयल और एल्यूमिनियम शीट रख सकते हो, एंड यू विल सी दैट द कैथोड रे कैन पेनिट्रेट थ्रू द एल्यूमिनियम शीट, तो इसका पेनिट्रेशन पावर भी है। कैथोड रे हैज इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है? तो दिस आर द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जिससे तुम्हें कैथोड रे के बारे में सब कुछ पता चलता है, ठीक है? Yes, sir. तो क्या क्या पता चला है अभी तक, कैथोड रे मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, वो पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होता है, इसका डिफ्लेक्शन होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पे, दैट मींस इट हैज इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइक लाइट। कैथोड रे का पेनिट्रेशन पावर है, फोटोग्राफिक प्लेट पे भी ये इफेक्ट करता है, राइट? Yes, sir. चलो, नाउ यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पैरामीटर स्टडी करेंगे विच इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है?
अब स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ ए स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे मतलब कैथोड रे के अंदर जो भी पार्टिकल है उसका चार्ज बाय मास रेशियो, ठीक है, चार्ज बाय मास रेशियो, और यू कैन से क्यू बाय एम, क्यू इज चार्ज, एम इज मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। नाउ एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, लेट्स से कि वी हैव डन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग हाइड्रोजन गैस इनसाइड द ट्यूब, राइट? Yes. तो यही एक्सपेरिमेंट वी कैन डू विद डिफरेंट गैसेस, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन वी कैन टेक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी गैस ले सकता हूँ, राइट? बट इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि Yes. whatever gas you take inside the tube, the specific charge remains same. That means the specific charge of cathode ray is independent of the nature of gas taken in the discharge tube, and it is constant for all the gases, right? And this value कैथोड, ये जो स्पेसिफिक चार्ज है कैथोड रे का, इसका वैल्यू इज कमिंग अराउंड 1.758 इंटू 10 to the power 11 कूलम्ब पर केजी, ठीक है। एंड दिस इज सेम फॉर वट एवर गैस यू टेक, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस टेकन इनसाइड द ट्यूब। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. राइट। तो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन दैट हाउ कैथोड रे इज जेनरेटेड, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज तो मैंने बोल दिया, बट दिस इज द मेजर ब्रेक थ्रू, जिससे तुम्हें पता चलता है कि ये जो पार्टिकल है कैथोड रे के अंदर फॉर डिफरेंट गैसेस वो सेम है कि डिफरेंट है, वो पता चलता है फ्रॉम दिस लास्ट ऑब्जर्वेशन वी मेड। तो पहले देखते हैं कि हाउ कैथोड रे इज जनरेटेड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेटल प्लेट है, ये एनोड है, सॉरी दिस इज कैथोड जो नेगेटिव प्लेट है। तो इसमें मेटल सरफेस पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, and ये पॉजिटिव प्लेट है। now if you are applying very very high voltage, तो फिर क्या हो, तो यहाँ से ये जो कैथोड है यहाँ से दिस इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। कैथोड के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल इजेक्ट विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी व्हेन वेरी हाई वोल्टेज इज अप्लाइड। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. तो फिर Yes. अब बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहा है इसको रास्ते में क्या मिलेगा? रास्ते में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मिलेगा, राइट? वी हैव टेकन Yes. हाइड्रोजन गैस इनसाइड द ट्यूब, तो दिस इलेक्ट्रॉन्स इसको रास्ते में कौन मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स मिलेगा, राइट? अदित, आर यू देयर? आई कैनॉट हियर यू। Yes, sir. Am I audible? यस यू आर। तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मिलेगा, एंड व्हाट विल हैपन, दिस इलेक्ट्रॉन्स इज colliding with this hydrogen molecule with very very high kinetic energy, right? एंड ड्यू टू दैट कॉलिशन Hmm. क्या होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या होता है, दो हाइड्रोजन एटम आर कोवैलेंटली बॉन्डेड, तो दिस व्हेन द इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड विद दिस मॉलिक्यूल इट विल ब्रेक दिस बॉन्ड, राइट? एंड दिस हाइड्रोजन एटम्स विल बी सेपरेटेड, क्लियर? Okay. Yes, sir. बट इवन आफ्टर ब्रेकिंग द बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन के पास और भी काइनेटिक एनर्जी इज रिमेनिंग, राइट? तो विद द रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी व्हाट विल इट डू, ये जो हाइड्रोजन एटम सेपरेट हुआ है, हाइड्रोजन एटम मतलब क्या है, देयर इज वन इलेक्ट्रॉन which is bound by the hydrogen nucleus. There is this electron is bound by the nucleus with some attraction, but this electron with the remaining kinetic energy will also break this bond between the nucleus and the electrons of hydrogen atom. Is it clear? तो फिर क्या होगा, hydrogen Yes, sir. atom will be ionized to H plus ion, because ये इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है एटम से, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था वो एटम के बाहर आ रहा है, ठीक है। Yes, sir. तो again I am telling you, the electron which is getting ejected from the cathode because of the high voltage applied, what is it doing, it is colliding with the hydrogen molecule, it is breaking the hydrogen hydrogen bond, the hydrogen, so it is breaking or dissociating the hydrogen molecules into the atoms, right? And it is further ionizing the hydrogen atom into H plus ion and electron. Is it clear? Yes, sir.
So what happens when these electrons collides the H2 molecule? Finally, you are getting H plus ions, and the electrons are coming out of the hydrogen atom. This is your final state, H plus and electrons. Now, the electrons which are coming out of the hydrogen atom, they will be drawn towards the positive plate or anode. Yes or no? Yes. तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ रहा है और एनोड तक इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहा है बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स ये स्लिट के अंदर से निकल जाएगा, व्हाट विल दे डू? दे विल एनर्जाइज द जिंक सल्फाइड कोटिंग बिहाइंड द एनोड. तो फिर यहाँ से ग्रीनिश ग्लो निकल के आएगा. Yes, sir. ठीक है ना? तो ये समझ में आया Yes. हाउ कैथोड रे Yes, इज sir. ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड. Hmm. कैसे ये एनोड तक पहुंच रहा है, क्यों जिंक सल्फाइड कोटिंग एनर्जाइज हो रहा है, ग्रीनिश ग्लो दे रहा है. सो यू कैन सी दैट कैथोड रे इज नथिंग बट स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. राइट, वो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई मास रेशियो करोगे तो ये वैल्यू आएगा 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी. राइट, Yes. एंड फ्रॉम दिस कांस्टेंट वैल्यू मुझे ये पता चलता है कि ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, ये मतलब वट एवर गैस यू आर टेकिंग दिस वैल्यू इज कमिंग. इसका मतलब सारे गैस में यही चीज हो रहा है. मतलब वट एवर गैस यू Yes, sir. टेक, लेट्स से इफ यू आर टेकिंग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो फाइनली तुम्हें क्या मिलेगा? H प्लस एंड इलेक्ट्रॉन. अगर O2 मॉलिक्यूल है तो ये तोड़ के O प्लस एंड इलेक्ट्रॉन मिलेगा. नाइट्रोजन है तो N प्लस एंड इलेक्ट्रॉन. तो वट एवर गैस यू टेक, वो एटॉम से इलेक्ट्रॉन ही निकल के आ रहा है, एंड दैट इज वाई द चार्ज बाई मास रेशियो इज कांस्टेंट, व्हिच प्रूव्स दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इनसाइड ऑल द एटॉम. राइट, सो इलेक्ट्रॉन इज प्रूव्ड टू बी a subatomic particle. क्लियर हुआ कि नहीं कि कैसे इलेक्ट्रॉन Yes, sir. डिस्कवर हुआ फ्रॉम कैथोड रे? इज देयर एनी डाउट? Hmm. Yes. No, sir. चलो, तो लेट अस स्टार्ट विथ. तो अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया. लेट अस चेक हाउ प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड फ्रॉम एनोड रे. ठीक है, तो एनोड रे एंड कैथोड रे में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है, बस यू चेंज द सेटअप. लेट्स डू द couple of changes in the setup. What is the change I have done? So this time, instead of anode, I have placed the zinc sulfide coating behind the cathode. ठीक है, सेम सेटअप, एवरीथिंग इज सेम, ओनली I have taken the screen coated with zinc sulfide behind the cathode. Last time it was behind the anode. And also I have Yes, sir. taken perforated cathode. मतलब इस cathode में there are holes through which the particles can pass through. This is a perforated cathode, and cathode के पीछे there is a screen which is coated with zinc sulfide. So these are the two changes I have made in the previous setup. तो देखो, तुम्हें ऑलरेडी पता है, इफ यू टेक द हाइड्रोजन गैस तो यहाँ पे H प्लस आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स होगा. ठीक है, दिस टाइम आई हैव नॉट प्लेस्ड द जिंक सल्फाइड स्क्रीन बिहाइंड एनोड. तो एनोड के पीछे से कोई ग्रीनिश ग्लो नहीं मिलेगा. कहाँ से मिलेगा? ऑब्जर्वेशन इज यू विल गेट द ग्रीनिश ग्लो behind the cathode from the zinc sulfide coating. राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कोई ना कोई इनविजिबल एनर्जी जनरेट हुआ है which is moving towards the cathode. Yes or no? तो direction तो Yes. this time the direction is opposite. I can see that there is some invisible energy is generated which is moving towards the cathode. Right, Yes, sir. एनोड टू कैथोड जा रहा है. तो यहाँ पे as per the direction, what is the direction? Anode to cathode. This can be called anode ray or canal ray. Why canal ray? Because of the perforations in the cathode. Cathode के अंदर जो holes है, that is why it can be also called canal ray. ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना तो आसान है, because now you know that apart from the electrons, ये यहाँ पे क्या है? H plus ions भी है. तो this H plus ions will be drawn by the cathode. ये Yes, sir. कैथोड के तरफ, कैथोड इसको खींचेगा. Right, cathode is a negative plate, it will attract the positive ions, and this positive ions which will move pass through the holes will hit the zinc sulfide screen. तो यहाँ से greenish glow मिलेगा. Yes, sir.
ठीक है ना? तो कहना इसे कैथोड रे इज सॉरी एनोड रे इज नथिंग बट स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. Yes, sir. देखो कैथोड रे और एनोड रे का जो प्रॉपर्टीज है दे आर मोर और लेस सेम. मतलब सेम प्रॉपर्टीज होगा. एनोड रे मूव्स इन स्ट्रेट लाइन. ठीक है. इट इज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है. इसका पेनिट्रेशन पावर है. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगा. फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट करेगा. सो ऑल दिस पैरामीटर्स आर देयर बट विथ सम मेजर डिफरेंसेस. तो मेजर डिफरेंसेस क्या है इन दोनों के बीच? फर्स्ट ऑफ ऑल कैथोड रे सॉरी एनोड रे के अंदर जो पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है. तो इसका डिफ्लेक्शन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑपोजिट. Yes. सिंस द नेचर ऑफ चार्ज इज ऑपोजिट तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे डिफ्लेक्शन भी ऑपोजिट होगा विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड रे. ठीक है. बट Yes, sir. जो मेजर Yes. डिफरेंस है दैट कम्स फ्रॉम द स्पेसिफिक चार्ज. इट सेज और इट हैज बीन ऑब्जर्व कि the specific charge of anode ray is different if you change the gas inside the tube. That means it depends on the nature of the gas. Is it clear? Yes, sir. क्यों different है? क्योंकि we know that anode ray is basically stream of positively charged particles, right? Hmm. So if you take H2 gas, so this positive ion is H plus ion. If you take O2 gas, the positive ion is O2 O plus ion. अगर तुम नाइट्रोजन Yes. गैस लेते हो तो दिस पॉजिटिव आयन इज N प्लस आयन. सो एवरी टाइम द पॉजिटिव आयन इज चेंजिंग. अब देखो ये जो पॉजिटिव आयन है ये पॉजिटिव चार्ज है उसमें अमाउंट ऑफ चार्ज तो सब में सेम है राइट. ये सारे Yes, sir. एटम्स 1 यूनिट चार्ज कैरी कर रहे हैं. बट द चार्ज बाई मास रेशियो में जो डिनोमिनेटर मास दैट विल कीप चेंजिंग विद द गैस. Yes, sir. डिनोमिनेटर पे जो मास है दैट विल कीप चेंजिंग विद द गैस एंड दैट इज व्हाई द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड रे विल आल्सो चेंज. ठीक है. तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड रे डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस व्हिच इज अनलाइक कैथोड रे राइट. तो ये जो सारे गैस है कैन यू टेल मी इसमें से किसका एनोड रे में स्पेसिफिक चार्ज शुड बी मैक्सिमम? फॉर व्हिच The गैस द light स्पेसिफिक राइट. hydrogen. सो टेक्निकली व्हाट चार्ज तो सारे पॉजिटिव आयंस का सेम है फॉर डिफरेंट गैसेस. द गेम चेंजेस विद द डिनोमिनेटर. तो ये डिनोमिनेटर जितना कम होगा ये रेशियो उतना ज्यादा होगा. Yes. डिनोमिनेटर मतलब मास ऑफ आयन सबसे कम किसके लिए होगा आउट ऑफ ऑल द गैस. इट विल बी मिनिमम फॉर हाइड्रोजन गैस क्योंकि H प्लस आयन का मास सबसे कम होगा आउट ऑफ ऑल दिस राइट. तो आई कैन से द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड रे इज मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन गैस. ठीक है. एंड इट हैज बीन फाउंड फॉर अदर गैसेस द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड रे is basically a basically a sub multiple of specific charge of anode ray of hydrogen gas right. समझ में आया कि नहीं? मतलब हाइड्रोजन गैस का जो Yes. एनोड रे का स्पेसिफिक चार्ज है उसका एक सब मल्टीपल होता है राइट. एंड Hmm. दैट इज द specific charge of anode ray of other gases. Let's say n is the so this n must be a whole number which is at the denominator. Yes. So 1 by s is the Hmm. submultiple. तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे पता चलता है कि लेट्स से मतलब जिस गैस एटम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसमें एन नंबर ऑफ H प्लस आयंस है. वो एटम के अंदर एन नंबर ऑफ H प्लस आयंस है. मतलब H प्लस आयन सब में है. किसी में एक है किसी में दो होगा किसी में तीन होगा ऐसे. ये सुन लो How to? Yes, sir. Okay. राइट. तो यहाँ से क्या पता चलता है कि प्रोटॉन इज ऑल्सो ए सब एटॉमिक पार्टिकल. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड ऑल द एटम राइट. Yes, sir. So that is the discovery of proton as a subatomic particle. Now if I ask you कि कैथोड रे और एनोड रे में स्पेसिफिक चार्ज किसका ज्यादा होगा? Cathode ray. क्यों? Because for anode ray, it varies for every single gas. So The the point is ratio कैथोड will. रे में in कैथोड रे what is the particle? The particle is electron जिसका मास negligible होता है with respect to any other ion. Okay. राइट. तो डिनोमिनेटर जहाँ पे कम होगा उस वहाँ पे स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होगा एंड डिनोमिनेटर
will be minimum for electron, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास is negligible, है ना? Hmm. तो Yes, sir. whatever, even if you take hydrogen gas, फिर भी cathode ray of specific charge will be greater than that. I hope this is clear. Yes, sir. तो यहाँ पे देखो, so whatever I have discussed so far, यहाँ पे एक comparative study है between the cathode ray and anode ray. So I am not going through this. You can revise it when you have the PDF, right? Okay. चलो, तो बचा कौन अभी? न्यूट्रॉन. So we have to also found out ki how neutron is discovered. Do you know who discovered neutron? Chadwick. Chadwick, who was the disciple of Rutherford. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं होल सेटअप क्या है. सो लेट्स से यहाँ पे there is a radioactive element kept which is polonium. Polonium radioactive, ये क्या करता है? It emits alpha particles. It emits alpha particles, and let's say this stream of alpha particles are project. So let us understand how neutron was discovered. So let's say there is a radioactive element polonium which emits alpha particles, right? And we are projecting the stream of alpha particles towards a beryllium sheet. Beryllium का atomic number is 4 and mass number is 9. Okay? तो पहले सेटअप Yes, पता sir. कर लेते हैं. तो बेरिलियम शीट के पीछे क्या है? एक पैराफिन वॉक्स है, राइट? पैराफिन क्या होता है? दैट इज ए हाइड्रोकार्बन विच इज हाइड्रोजन रिच एंटिटी. ठीक है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन का परसेंटेज बहुत ज्यादा होगा, और हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होता है, हाइड्रोजन रिच एंटिटी. ओके, बाय नंबर आई एम Yes, sir. सेइंग, नॉट बाय मास, बट बाय नंबर हाइड्रोजन एटम्स काफी ज्यादा होता है इन दिस हाइड्रोकार्बन. तो ये पैराफिन वॉक्स है, एंड इसके पीछे एक डिटेक्टर है. तो और आई कैन से आयोनाइजेशन चेम्बर फ्रॉम विच यू कैन काउंट the number of ions which is coming to it or which it is collecting. So this is the whole setup. We have a alpha emitter, we have a beryllium sheet, we have a paraffin works, and we have a ion counter. Okay, तो क्या होता है? This polonium radioactive element is projecting alpha particles towards the beryllium sheet. Okay, so this beryllium sheet is bombarded with the stream of alpha particles, and it has been observed gradually this beryllium sheet is converting into carbon, this in this carbon sheet. Okay, where the atomic number of carbon is 6 and mass number is 12. So gradually this beryllium sheet is converting with into the carbon sheet. Okay, is it clear? Yes, sir. So that means the nucleus is changing. So this is a nuclear phenomenon or nuclear reaction. Hmm. Can I say that? Yes, sir. Now what is the difference between a chemical reaction and a nuclear reaction? देखो, chemical reaction में तुम क्या करते हो? Balance the atoms of an element in both reactant side and product side. तुम किसी एलिमेंट का जो एटम होता है वो दोनों साइड पे सेम रखते हो, and that is how you balance, right? Yeah, yes, sir. Your voice is coming very low. Can you speak a little louder? Yes, sir. Okay. And during nuclear reaction we do not balance the atom because element ही change हो जाता है ना, you get new element. तो इसमें हम क्या balance करते हैं? We balance the atomic number and mass number. Total atomic number and mass number should be same on both reactant and product side. ठीक है, तो let us look at the reactant side. तो उसमें क्या है? अल्फा पार्टिकल जिसका atomic number is 2, mass number is 4, and we have beryllium जिसमें atomic number is 4, mass number is 9. So reactant side पे total atomic number is 6, total mass number is 13, and product side पे मुझे क्या मिल रहा है? 6C12. तो atomic number is already adjust balanced, right? But mass number there is a deficit of 1. Do you agree or not? Yes. तो इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब there is some particle coming out of the beryllium atoms जिसका atomic number should be 0 and mass number should be 1, Yes, sir. right? तो मुझे ये पता चल गया है कि जो पार्टिकल निकल के आ रहा है बेरिलियम एटम से उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर पता चल गया. मतलब न्यूक्लियर कंपोजिशन तो पता चल गया, बट मुझे उसका नेचर भी पता करना है. तो इसलिए क्या हुआ है यहाँ पे,
between the beryllium sheet and paraffin wax there is a external electric field apply. दिख रहा है यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट एंड एक नेगेटिव प्लेट Yes. दिख रहा है बट Yes, sir. even we are applying the external electric field no deflection is observed. तो इसका मतलब क्या हुआ दिस चार्ज मस्ट बी न्यूट्रल. तो दो कंक्लूजन हो सकता है यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है कोई पार्टिकल नहीं निकल के आया है और दूसरा ऑब्जर्वेशन है इफ एनी पार्टिकल कम्स आउट दैट मस्ट बी न्यूट्रल राइट. Yes, sir. तो यू हैव टू कंफर्म दैट. तो कैसे कंफर्म करना है देखो तुम्हारा वॉइस बहुत कम आ रहा है तो आई थिंक यू नीड टू फिक्स दैट. तो व्हाट वी कैन डू टू प्रूव कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है या नहीं है तो उसके लिए यू हैव दिस पैराफिन वर्क्स एंड दिस आयन काउंटर. देखो if a high energy particles are coming out of the beryllium sheet and hitting the paraffin wax तो फिर क्या होता है इसमें ये paraffin wax is hydrogen rich as I told you. So this high energy particles will hit the paraffin wax and it will ionize the hydrogen atom into H plus ions and this H plus ions will be counted in this ion counter. ठीक है तो अगर ये H plus ion Got it. count होता है so how do you justify the H plus ions in the ion counter? The only possibility is some high energy some high energy particles are coming out of the beryllium sheet. This atomic number is 0, mass number is 1. That is striking the paraffin wax, ionizing the hydrogen atom into the ions, which we are counting here. And this particles is neutral because there is no deflection in the external electric field. Is it clear? Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. And this particle is named as neutron. That is how neutron was discovered from this experiment. Okay. So I think we are done with the first class. Today's objective was to learn how the subatomic particles are discovered. So that is done, and next class onwards we will move to the first we will build up the concepts like since the particles are discovered now you can see that एटम के अंदर सिंस चार्ज पार्टिकल है तो फर्स्ट आई नीड टू लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ दिस पार्टिकल्स इनसाइड द एटम. ठीक है सो लेट नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट ऑन दैट नोट. Okay. तो आज खत्म करते हैं.